جیسے کہ ہم کل گھوشنا کیے تھے، ٹیمپٹیشن پرلوبن اور پریکشا۔ اوبیڈینس کے بعد میں آجنا کاریتا ہونے کے بعد، ودھیتا سیکھنے کے بعد اب ہمارا آج کا کلاس ہے ٹیمپٹیشن کا۔ ودھیتا، آجنا پالن کرنا، اس دیش سے، اپنے پتا کے گھر سے پرمیشور کا وچن درشن میں پرکٹ ہوتا ہے۔ ابراہم کو کہتا ہے اس دیش کو، اپنے پتا کے گھر کو چھوڑو، اور جو دیش کو میں لے جانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، اس دیش کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ہو گیا تھا، پرمیشور کے وچن کا، آجنا کا پالن کیا۔ He was obedient to the word of God, and he called the father of believers. ابراہم نے آجنا کا پالن کیا، اور بعد میں ابراہم کے جیون میں یہ پریکشا آتا ہے، ٹیمپٹیشن آتا ہے۔ ٹیمپٹیشن کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، اور پہلا وچن کو پڑھیں گے، پہلا کورنتھیوں کی پتری 10:13۔ پہلا کورنتھیوں کی پتری ادھیائے 10 اور وچن 13۔ پڑھیے، کوئی بہن یا بھائی۔ 10واں ادھیائے پڑھنا نا سر؟ ہاں، 10:13۔ تم کسی ایسی پریکشا میں نہیں پڑے جو منوش کے سہنے سے باہر ہے۔ پرمیشور سچا ہے، اور وہ تمہیں سامرتھ سے باہر پریکشا میں نہ پڑنے دے گا، ورن پریکشا کے ساتھ نکاس بھی کرے گا کہ تم سہ سکو۔ آمین۔ پریکشا ہمیں بڑھوتری، آگے جانے کے لیے، سٹیپ بائی سٹیپ اس اونچی ستان پر پہنچنے کے لیے ہمیں شکشا دیتی ہے۔ پریکشا سمندر کو 2 بھاگ کر کے سارے لوگ آ رہے تھے، گیتوں کو گا رہے تھے، آرادھنا کر رہے تھے، اور 3 دن کے بعد اس جگہ پر آئے ہیں جہاں ان کا پریکشا لیا گیا۔ پانی میں سے ہی ہو کر آئے تھے، سمندر سے۔ اب ان کے پاس پانی پینے کے لیے پانی نہیں، اس جگہ پر آئے تھے جہاں پانی تو تھا، لیکن وہ پانی پیتے تو مر جاتے۔ اب کیا کرتے؟ منشیہ ریتی سے تو وہ لوگ صحیح کر رہے تھے، منشیوں کے سامان، سنسار کے سامان، دنیا کے سامان سوچتے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے پانی نہیں پینے کے لیے، اس جگہ لے آئے ہمیں، کیا یہ پانی پی کے مر جائے ہم؟ سمندر 2 بھاگ ہونے سے پہلے بھی یہی کر رہے تھے، کیا یہاں مارنے لے آئے ہمیں؟ مصر دیش میں قبریں نہیں تھے ہمارے لیے، جگہ نہیں تھی وہاں، یہاں لے کر آئے ہو جنگلوں میں۔ اب دیکھیے، سمندر 2 بھاگ ہوئے ان کے آنکھوں کے سامنے۔ سارے اسرائیلی لوگوں کو آنکھوں پر پٹی باندھی نہیں گئی تھی، کہا نہیں گیا تھا کہ اب سب لوگ آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہیں بولوں گا کوئی آنکھوں کو نہیں کھولنا۔ اور آنکھوں کو بند کر کے ان سب کو اٹھا کر سمندر کے اس پار لے کے گیا، اور آنکھوں کو پٹی کھولا نہیں۔ یہ لوگ سب دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، پانی کیسا 2 بھاگ ہو رہا ہے، پانی بھاگ رہا ہے، دائنے کا پانی دائنے اور بائیں کے پانی بائیں اور راستہ
हाई वे बन रहा है, ड्राई लैंड बन रहा था, सूखा रास्ता। देख रहे थे क्या हो रहा है, और ऐसा काम कभी हुआ और न कभी होगा। समुद्र का पानी अपने आप भागे जाना और बीच समंदर में सड़क बन जाना, ताकि ये लोग जाए जाए और उस पार पहुंचे। और ये भी देख रहे थे पीछे से फिरौन के सेनाएं भागे आ रहे थे, और ये लोग आगे आगे सब लोग उस पार चले जाते। बीच समुद्र में वो मिस्र देश के सेनाएं आके पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर आज्ञा देता है पानी को, पहले जैसे बन जाओ। दोनों तरफ के दीवार के समान खड़ा हुआ पानी को आज्ञा मिला परमेश्वर से कि वो पहले के बराबर हो जाए, ताकि वो सारे मिस्र देश के सेना 400 साल से अधिक इनको गुलामी में रखे थे, पेट भर का खाना नहीं देते थे, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं देते थे, गुलामी का काम करवाते थे इनसे। न्याय किया परमेश्वर, ये सब इनके आंखों के सामने हुआ। अब ये लोग आते हैं उस जगह, और वहां पानी नहीं, पानी है लेकिन पीने के लायक नहीं। जंतु जानवर भी उस तरफ नहीं जाते, वो पानी खारा खारा पानी, पानी में मृत्यु है। तो अब कुरिन्ती, पहले कुरिन्ती का 10 का 13 में पढ़ते हैं, जैसे कि मदन कुमार जी पढ़कर सुना रहे थे। ऐसा परीक्षा होगा जो हम सह सके। जब 8वीं क्लास में हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी 12वीं का परीक्षा लिया जाता है या 10वीं का परीक्षा लिया जाता है? नहीं, जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उसी क्लास के साल भर के लेसनों का ही परीक्षा लिया जाता है। जो अभ्यास कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उसी क्लास में उसी सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाता है। कठिन कैसा होता है वो? इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है? बाधा कैसे होगा उस परीक्षा में जाने के लिए? क्यों डरते हैं? साल भर तो पढ़ाई किया, उसी क्लास का परीक्षा लिया जाएगा। आठवीं आठवीं में आठवीं का ही लिया जाएगा परीक्षा, उससे बड़ा नहीं मिलेगा, उससे कठिन नहीं मिलेगा, उससे मुश्किल का नहीं मिलेगा। तो समुन्द्र को दो भाग करने वाला क्या ये पानी को पीने का लायक नहीं बनाएगा, या कहां से और पानी नहीं देगा? विश्वास की जरूरत है, विश्वास रखना चाहिए परीक्षा जीतने के लिए, टेम्पटेशन को सहने के लिए विश्वास की जरूरत है। जो समुन्द्र को दो भाग करने वाला, इतना बड़ा काम, इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला, जो अब तक कोई परमेश्वर किसी के लिए, किसी जाति के लिए नहीं किया, इतना बड़ा काम हमारे आंखों के सामने हुआ। हम खुद चलकर आए थे उस पानी में से, समुद्र में से। हमें मारने के लिए आने वाले खुद मर गए, पानी में डूब गए थे। इतना बड़ा काम कोई कर सकता है? हमारा परमेश्वर इतना बड़ा काम को करने वाला, और भी करेगा, और भी करेगा। टेम्पटेशन। बच्चे समझते हैं, सोचते हैं उनका कभी परीक्षा लिया ही नहीं जाए। कोरोना में पिछले साल, 2 साल पहले, जहां तक मेरा नॉलेज है, हमारे इंडिया में एग्जामिनेशन नहीं लिए थे। विदाउट एग्जामिनेशन, बिना परीक्षा के बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट कर दिए। बोर्ड एग्जाम भी, यहां तक कि 10वीं 11वीं का भी प्रमोशन दे दी है। परीक्षा परीक्षा में जाने का अनुकूल वातावरण नहीं था, और बच्चे समझते हैं हमेशा ऐसा ही हो।
परीक्षा ही नहीं ली जाए। एक एक में जाते हैं क्लास 1 में, और विदाउट एग्जामिनेशन देते हुए वो 2 में जाएगा, और 2 का परीक्षा नहीं देते हुए 3 में जाएगा। और आगे आगे 10वीं 12वीं परीक्षा नहीं हो तो बहुत अच्छा होगा। क्या परीक्षा नहीं हो तो अच्छा होगा? परखा नहीं जाएगा उनको, परखा नहीं जाएगा। परीक्षा ही प्रमोशन है। परीक्षा जहां नहीं होता है वहां कोई प्रमोशन नहीं होता। परीक्षा होनी है। उस पानी को, जो पानी पीने से मर जाते हैं, वहां परीक्षा था। वहां परीक्षा में ये मानना था हमारा परमेश्वर हमें पानी देगा। हमारा परमेश्वर हमारा यहाँ पहुंचना पहले से जानता है, और उसका उपाय है। टेम्पटेशन के साथ ही टेम्पटेशन के साथ ही अगर आंखों को खोलेंगे, देखेंगे, तो वहां उपाय होगा। जो पानी जानवर भी नहीं पीते, पीते तो मर जाते, उसी पानी के उसी पानी के पास एक पेड़ खड़ा था। पेड़ कोई छोटा सा पौधा नहीं था। पेड़ 30-40 साल का, और उससे भी अधिक होगा। मूसा से कहा, देखो इस पेड़ को, ये कब से खड़ा है यहाँ पर। ये छोटा सा, जो बीज बोते हैं तो उसका निकलता है छोटा सा पन। अगर उस समय में कोई जंगली जानवर उस पर अपना पैर रखकर पैर के तले कुचल डालता, तो ये पेड़ क्या हो जाता। कितने गर्मी को सहा होगा, कितने धूप काल को सहा होगा, कितने साल, कितने तूफानों को सहा होगा, कितने तेज हवाएं आए होंगे इन पिछले सालों में। और इस पेड़ को बचाया कौन? इस पेड़ को बचाया कौन? वो जो अपने संतान, अपने बच्चों को वहां से निर्गमन से लाता है, समुन्दर को 2 भाग करता है, और वो जानता था वो लोग सीधा यहीं पर आएंगे, और ये पानी पीने का लायक नहीं। ये पानी पीने का लायक बनाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा। तो मैंने इस पेड़ को यहाँ रखा। कोई यात्री अपने रास्ते से जाता, देखता कि कितना सीधा लकड़ी है, पेड़ है छोटा सा, ये मेरे हाथ का लकड़ी बनाने के लिए मैं इसको काट लूंगा। किसने बचाया वो यात्री नहीं काटने से? कितने तूफानों में उसको खड़ा किया? किसने इस पेड़ को यहाँ रखा? परीक्षा के साथ ही उपाय को कौन रखा? उसी पेड़ से वो पानी मधुर पानी बन जाता है। जिस पानी पीने से मर जाते, उस पानी को ही पीते हैं और जीते हैं। परीक्षा के साथ ही, परीक्षा में ही विजय। परीक्षा देते हैं तो प्रमोशन होते हैं, बच्चे अगले क्लास में जाते हैं, पास हो जाते हैं। परीक्षा देने समय डरते हैं, रोते हैं, घबरा जाते हैं, और रिजल्ट आने के बाद देखिए कितना खुशी, कितना आनंद होते हैं बच्चों पर और उनके माता पिता पर, उनके परिवार में। मेरा बच्चा अव्वल नंबर पे आया, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में पास हो गया, मेरा बच्चे का नंबर फर्स्ट क्लास में मिला, मेरा बेटी फर्स्ट रैंक में पास हो गई। मिठाइयाँ बांटता है वो पिता। कितना खुश हो जाता है। फिर अगले साल परीक्षा आया तो वो बच्ची बीमार पड़ जाती है, डर जाती है, कांपती है, और अपना पिता प्रार्थना करता है, ये परमेश्वर, मेरा बेटी अब 2 दिन में परीक्षा, और मेरा बेटी को आज बुखार है, सर दर्द है, पेट में तकलीफ है। कलीसिया में बताता है, परमेश्वर के दास दासियों को फोन लगाता है, बोलता है 2 दिन में मेरा परीक्षा है। जैसे कि निकिता कुमारी पिछले हफ्ते ही मुझसे बातें फोन पर बताया कि आने वाले 1 अक्टूबर को उसका परीक्षा है, उसका एग्जाम है, और इस बार वो चाहती है वो पास हो जाए, उसको नौकरी मिले पुलिस डिपार्टमेंट में।
तो परीक्षा के बाद ही नौकरी मिलता है, परीक्षा के बाद ही प्रमोशन मिलता है। टेम्पटेशन को सहने के लिए वो ताकत, वो शक्ति, वो टेम्पटेशन में ही रखता है। टेम्पटेशन परीक्षा है, टेम्पटेशन प्रलोभन प्रलोभन भी है। हम खुद ही प्रलोभ के कारण टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। टेम्पटेशन एक तरफ का परमेश्वर हमें परखने के लिए देता है, परीक्षा हमारे विश्वास को, और टेम्पटेशन प्रलोभन में हम ही पड़ जाते हैं, खुद ही पड़ जाते हैं। याकूब की पत्री 1 का 14 और 15। द लेटर फ्रॉम जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 14 and 15। याकूब का पत्री 1 का 14 परंतु और परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु के उत्पन्न करता है। आमीन। वो आशा, मन की इच्छा हमें खींच कर ले जाता है और फंसा देता है। फंस जाते हैं और हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं हमारी इच्छा के कारण। विदाउट आस्किंग द परमिशन ऑफ गॉड, विदाउट कंसल्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर के वचनों में नहीं देखते, खुद ही इच्छा बना लेते हैं, मन बना लेते हैं। ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो चाहिए, ये चाहिए, वो पाने के लिए ऐसा करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा। ये संसार की रीति है। कुछ पाना चाहेंगे तो कुछ करना होगा, वो गलत हो या सही। सही गलत का कोई मायना नहीं रखते। उनको पाना है, उनके बड़े आदमी बनना है, उनके पास गाड़ी चाहिए, पाने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी करो। क्या सही होगा? सही गलत को छोड़ो, आपको पाना है तो करो। बंगला चाहिए, ऐशो आराम वाले जीवन चाहिए, वो खींच लेता है, खींच कर ले जाता है बुरे कामों को करने के लिए, परमेश्वर के वचनों का कंसल्टिंग नहीं करने के लिए। बोलते परमेश्वर के वचन ऐसा ही बोलता है, छोड़ो। परमेश्वर के वचन ऐसा ही बोलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो ये कब होगा? कभी नहीं होगा। गरीब गरीब ही रहोगे तुम, तुम्हारा क्या डेवलपमेंट होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। परमेश्वर के वचनों के साथ जाएंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। खींच कर ले जाता है, अलग कर देता है, परमेश्वर से, वचनों से दूर ले जाता है और फंसा देता है। फंसकर क्या होते हैं? फंसकर क्या होते हैं? वो गर्भ धारण करता है, अभिलाषा, और पाप को जन्म देता है। और पाप जब हो गया हमारे अंदर, हम नाश हो जाते हैं। परमेश्वर से अलग होना ही मरना है। आदम हवा को परमेश्वर उस वाटिका से निकाल दिया था, परमेश्वर से अलग हो गए थे, तो वही उनका मृत्यु था। तो ये हमारे खुद की इच्छा, हमारे खुद की मन, हमारे चाहते परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो तो यीशु मसीह को ये टेम्पटेटर आया था, बोला था बड़ी भूख लग रही ना, 40 दिन हो गए, भूख तो लगता है। ये तो समस्या है मनुष्यों का। आप स्वर्गलोक में रहते हैं और बोलते हैं परमेश्वर के इच्छा के बिना कुछ मत करो। आप भूख लग रहा है तो क्या करें? लग रहा है ना भूख, ऐसा करो, इन पत्थरों को रोटी बनाओ और खा लो। यीशु मसीह को आज्ञा दे रहा है,
कभी यीशु मसीह का सेवक था वो भी दूत था स्वर्गलोक में। उसके गर्व के कारण, उसकी मूर्खता के कारण वहां से निकाला गया था, उस नौकरी से, जो हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थिति में आराधना करने का। अब आकर वो यीशु मसीह को ही बोलता है, आज्ञा दे रहा है कि इन पत्थरों को रोटी बनाकर खा लो। तो भूखा आदमी क्या करेगा? भूख तो लग रहा है यीशु मसीह को भी। 40 दिन 40 रात उपवास में थे वो, पानी तक नहीं छुए थे। तो यीशु मसीह वहां सिखा रहा है, जो आदमी 40 दिन तक कुछ बिना खाते हुए जी रहा है, क्या एक और दिन नहीं जिएगा? एक और दिन नहीं जिएगा परमेश्वर को उपाय आने तक? परमेश्वर उपाय नहीं करेगा? पानी, वहां खारा पानी था, खरा पानी, और ये लोग वहां आने के बाद परमेश्वर उपाय किया। ये लोग आने से पहले था वहां पेड़, ये लोग वहां पहुंचने से पहले वहां पेड़ खड़ा था। ये लोग वहां निकले भी नहीं थे मिस्र देश से, अभी समुद्र के सामने आए भी नहीं थे, समुद्र दो भाग भी नहीं हुआ था। बहुत पहले से ये पेड़ यहाँ पर खड़ा है जहां वो पानी है, बहुत पहले से। तो परमेश्वर के पास उपाय जरूर होता है, बहुत पहले से जरूर होता है। और उसको चुप करा दिया, बोला, मिस्टर सैटन, मेरे विरोधी, ये मत बोलो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुख से निकलने वाले वो हर बातों से जीता है। वचन को ले लिया यीशु मसीह ने, पवित्र शास्त्र में से वचन को ले लिया, बोला, और उसका भूख मिट गया। टेम्पटेशन में घबरा नहीं जाना, परमेश्वर की उपाय को खोजते रहना, परमेश्वर की वचन में जाना, अंदर भीतर भीतर जाना, वहां से आपके टेम्पटेशन के बचने का उपाय को ले लेना, और उसको प्रकट करो, प्रोक्लेम करो उस वचन को, जैसे कि शैतान के सामने यीशु मसीह ने उच्चारण किया था, प्रोक्लेम किया था, कहा था। वचन को कहने से होता है, शक्ति रिलीज होता है हमारे अंदर, द पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड कन्फेशन। वो शक्ति परमेश्वर की वचनों को पॉजिटिवली कन्फेस करने से मिलता है। परमेश्वर के वचन, कितने वचन है बाइबल में, क्या उनको देखते हैं, नहीं समझते हैं, पढ़ते जाते हैं, नहीं समझते हैं, क्या मिलती है शक्ति? शक्ति तब मिलता है जब हम वो उस वचनों को पॉजिटिवली खाते हैं, लेते हैं हमारे लिए, और क्लेम करते हैं परमेश्वर के सामने, दुश्मनों के सामने, परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर हमारे समस्या को बोलते हैं, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो मेरे साथ है, मेरा पक्ष में, उसके पास कोई असंभव नहीं, मेरी इस परीक्षा के समय में वो मुझे निकालेगा। कहकर देखो कितना सुकून मिलता है। दिल पर हाथ रख के बोलो, मेरा परमेश्वर इस कठिन समय में, इस परीक्षा के समय में मुझे साथ रहेगा और मुझे इस समय से निकालेगा। मैं विजय पाऊंगा, मैं विजय पाऊंगा। कहकर देखो, और विजय संबंधी वचनों को खोजो। कहाँ मिलेगा? अब्राहम के जीवन में मिलेगा, इसहाक के जीवन में मिलेगा। अब्राहम उत्पत्ति के 12वां अध्याय से 26 तक 27 तक होता है, उसके बाद इसहाक का, उसके बाद याकूब का, फिर निर्गमम में मूसा के साथ इजरायली लोगों का मिलता है। भजन संहिता में कितने कितने वचन मिलते हैं जो हमारे अंदर शक्ति पैदा करते हैं। नीति वचन में कितने मिलते हैं, नबियों के पुस्तकों में, प्रवक्ताओं के, भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में, यशायाह से लेकर मलाकी तक, कौन सा भी अध्याय को ले लो, पढ़ो, कितने शक्तिशाली, कितने शक्ति ताकत से भरे हुए परमेश्वर के वचनों को मिलते हैं वहां। प्रोक्लेम करो, ऊंचे आवाज में पढ़ो, अकेले में हो या घर में हो, उस वचन को जोर जोर से पढ़ो, बार बार पढ़ो। बाहर जाओ, सड़कों में जाओ, 1 मील दूर जाते रहो, वापस आओ, उस वचन को मनन करते रहो, और देखो परमेश्वर की ताकत हमारे अंदर कितना कितना ताकत भर लेता है, कितना पावर को जनरेट करता है वो। प्रलोभन से बचना,
टेम्पटेशन से बचना परमेश्वर के वचन के साथ ही होता है। विदाउट वर्ड, विदाउट कन्फेसिंग द वर्ड, पावर कहाँ से मिलता है हमें? वो आत्मा में पावर मिलने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों का शरण लेना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक ही वचन को ले लो, पढ़ते रहो दिन भर। एक वचन को, एक वाचा को, एक प्रॉमिस को ले लो और उसको बांध लो, अपने हृदय में रखो, उसको बार बार मनन करते रहो और परमेश्वर की वो शक्ति, वो ताकत, वो पावर आपके अंदर जनरेट होता रहेगा। आपकी समस्या दूर होते रहेगी। आपके घर वालों के बीमारियां दूर होते रहेंगी। डॉक्टरों का कहना कुछ भी हो, डरना नहीं, मानना नहीं डॉक्टरों को बातों को। बोलते हैं कोई उम्मीद नहीं। कितने लोगों के लिए मुझे डॉक्टरों ने बताया कि इनके बचना कोई पॉसिबल नहीं है, पास्टर जी सारे उम्मीदें खत्म हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा परमेश्वर किया है। कैंसर पेशेंट के साथ किया है, लिवर फेल्यूर के कारण से अनेक लोगों के साथ किया है। महामारी में कितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया और उन सबको आज परमेश्वर ने बचाया। मुझको भी खुद बचाया परमेश्वर ने। मैं भी मरने वाला था महामारी कोरोना में, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ। मैं आज भी जीवित हूँ। आज भी मैं जा रहा हूँ लोगों के पास, शहर शहर, नगर नगर, सारा भारत में। और मैं चाहता हूँ फिर से एक बार नेपाल जाऊं, बांग्लादेश जाऊं, भूटान जाऊं। वो ले जाएगा मुझे, वो ले जाएगा मुझे। मैं जा रहा हूं, मैं जी रहा हूं। मुझे जिलाने वाला मेरे साथ है। उसके वचन मेरे हाथ में है, उसके वचन मेरे मुंह में है, उसके वचन मेरा हृदय में है। हर समस्या का, हर परीक्षा का बचाने वाला उपाय मेरे पास है, वो यीशु मसीह है, उसके नाम। मेरा हर समस्या का हल का नाम है यीशु मसीह। मेरा हर मुश्किल का आसान करने का नाम है वो शक्तिशाली यीशु मसीह। मैं किस बात से डरूं? बीमारी से डरूं, भूख से डरूं, गरीबी से डरूं? वो मेरा चरवाहा, मैं उसका पीछे पीछे जाने वाला, उसका प्यारा सा मेमना मुझे गोद में लेता है। मैं जब जब थक जाता हूं मुझे उठा लेता है अपने बाहों में, अपने सीने से लगाता है और हरी हरी चराइयों में ले जाता है, आगे आगे मेरे लिए, जहां मुझे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा घास मिलेगा, अच्छा वचन मिलेगा। उस क्षेत्र में पहले वो जाता है देखकर, और यहाँ ठीक होगा मेरा मेमना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे दास, और उस क्षेत्र को ले जाता है। डर किस बात का? परीक्षा के लिए डरते क्यों? अगर खुद प्रलोभन में पड़ जाते हैं तो याकूब का 1:14-15 हो जाएगा, पाप हो जाएगा, पाप से नाश हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे। प्रलोभन से बचो। खुद की आत्मा के बातों को, खुद की मन के बातों को, इच्छा को मानो नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानो। हर समय के लिए परमेश्वर के वचन में हल है, आज के लिए भी है। इफ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टुडे, जस्ट गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के पास जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। आज की आपकी हर समस्या के लिए हल है, और हल का नाम परमेश्वर का वचन है, और वचन ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे पास है, हर समस्या का उपाय, प्रलोभ से बचने का, प्रलोभ से बचने का। प्रलोभ में पड़ेंगे नहीं हम। प्रलोभन आता है, मन चाहता है ये करो, वो करो, ऐसा होगा तो अच्छा, ये ऐसा करेंगे तो अच्छा, लेकिन क्या करना है उसका अनुमति चाहिए, वचन का परमिशन चाहिए हमें। हमारा आधार है, हमारा बुनियाद है वचन, हमारा नींव है वो मसीह जीवन का नींव है यीशु मसीह का वचन। उस नींव पे खड़े होते हुए, उस बुनियाद पर आके खड़े होते हुए, क्या हमारा मनमानी करने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं। हमारा मनमानी तो कभी खत्म कर देते हैं हम, कर लिए होंगे हम। आज उसके मार्ग में जाने के लिए उसके वचनों के साथ जा रहे हैं हम। नो टर्निंग बैक, नो रिग्रेटिंग। कोई पछतावा है यीशु मसीह में आने के लिए आज? नहीं। यहाँ आनंद है, हम मगन है, हम वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, वी आर प्रेजिंग। हम उसका स्तुति गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं। पछताव है यीशु मसीह में आने के लिए? नहीं। फिर डर किस बात का? समस्या तो आएंगे, सारे मनुष्यों के लिए आते हैं। जैसे कि मदन भाई पढ़ रहे थे पहले कोरिन्थ की 10 का 13, सारे मनुष्यों के लिए, सरसान के लोगों के
سب کے لیے آتے ہیں समस्याएं. ہمارے پاس حل ہے اور وہ حل کا نام یीशु مسیح. ہمارے پاس اپائے ہے اور اپائے کا نام پوتر وچن, پرمیشور کے وچن. ہمیں سہارا ہے, ہم بے سہارا نہیں ہیں. تو سہارا کا نام پرمیشور ہے. ہمارا سیفٹی ستان ہے, ہمارا گڑھ ہے, ہمارا اونچا گڑھ, ہمارا بھروسہ ہے یीशु مسیح اس کا نام. ہمارا دھیرج ہے ہم پر. ہم اپنے آپ سے کہیں گے ہم یہاں ہارنے کے لیے نہیں آیا, آج میں ہاروں گا نہیں, میں جیتوں گا. یہ دھیرج دیتا ہے یीशु مسیح, اور وہ جیت دیتا ہے ہمیں. وہ جیت کا نام یीशु مسیح. یीशु مسیح کو ایسا اپنا لو میرے بھائی بہنوں, وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے. ہی از ایوری تھنگ. اور اس کے سامنے کوئی ناممکن کی بات ہی نہیں, اس کے ساتھ کوئی نامشکل کا کام ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی اسمبھو کا کام ہی نہیں. اگر مانے ہم وشواس رکھے اس پر, ہمارے لیے کوئی بھی اسمبھو نہیں ہے. دیر از نو امپاسبل. امپاسبل کے شبد کو جانتا نہیں یीशु مسیح کیسا ہوتا ہے امپاسبل. یीशु مسیح نہیں جانتا. یीशु مسیح جانتا ہے پاسبل, ممکن کو جانتا ہے یीशु مسیح. یीशु مسیح جانتا ہے جیتے جائے کیسے جیت جاتے ہیں. یीशु مسیح نہیں جانتا ہار کا کیا میننگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کبھی ہارتا نہیں اور ہمیں ہراتا نہیں. یीशु مسیح کے ڈکشنری میں ہار کا کوئی نام نہیں ہے. وہ نہیں جانتا ہار کیسا ہوتا ہے. چاہے گلیات کے سامان چٹان کڑا ہو, داؤد کے من میں یीशु مسیح ہے تو یीशु مسیح کبھی نہیں ہارتا. داؤد کبھی نہیں ہارتا. وہ گلیات ہار جاتا ہے چٹان کے سامان بلوان, وہ پڑ جاتا ہے, گر جاتا ہے, لیکن داؤد کبھی نہیں گرتا, کبھی نہیں ہارتا. دشمن کو ہراتا ہے, ٹیمپٹیشن کو گراتے ہیں پرمیشور کے بچے, یعنی کہ آپ اور میں. مشکل کو دیکھ کر ڈرتے نہیں ہم, سمسیا کو دیکھ کر ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم. ڈریں گے تو ہار جائیں گے, ہاریں گے تو ناش ہو جائیں گے. اگر گلیات کے سامنے داؤد پڑ جاتا تو وہ کیا کرتا, کیا کہہ رہا تھا وہ, آکاش کے پنچھیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سارے آکاش کے پکشیوں کو کھلاتا داؤد کو. داؤد ڈر جاتا, ہار جاتا تو کیا ہوتا اس کا. ہمارا بھی وہی ہے, ہم داؤد بن گئے ہیں. ہم چٹان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور للکارتے ہیں, آج تجھے مار گراؤں گا میں جیوت پرمیشور کے پکش میں آیا ہوں. میرے پاس جیوت پرمیشور کا وچن ہے, میرے پاس اپائے ہے, میرے پاس حل ہے, میرے پاس وہ گڑھ ہے, وہ ڈھال ہے, اس کا نام یीशु مسیح. کہہ کر دیکھو مشکل کیسے دور بھاگے گا, سمسیا کیسے حل ہو جائے گا, بیماریوں میں سے ہمارے بچے, ہمارے سارے بھائی بہن کیسے چنگے ہو جائیں گے. جو ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی, لیکن ہمارا ڈاکٹر کہتا ہے وشواس رکھو میں سب کچھ کرنے والا تیار ہوں آپ کے ساتھ. پرلوبن میں پڑ جاتے ہیں لوگ, پرمیشور کی پریکشا میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ, وشواس کرنے والے, جیتنے کے لیے, جینے کے لیے, پانے کے لیے آنندت ہوتے ہیں. پاس ہونے کے بعد بچے کیسے آنند ہوتے ہیں, پریکشا میں پاس ہونے کے بعد. ہمارا پریکشا ہر دن کا ہے, کیونکہ ہم ہر دن پریکشا لیتے ہیں اور ہر دن پاس ہو جاتے ہیں. ہر دن ہمیں آنند دیتا ہے وہ, ایوری ڈے. وشواسی جیون ہر روز کا سنگرش ہے میرے متروں, ہر روز کا یدھ ہے, جو ہر روز گلیات کو جیتنا ہوگا ہمیں, ہر روز اس کو مار گرانا ہوگا ہمیں. ہم دونوں ہاتھ آکاش کے اور اٹھاتے ہوئے چلا کر کہیں گے کہ میں نے جیت لیا ہے. I have done it. I have done it every day. کل بھی, آج بھی, اور جتنے دن ہم یہاں رہیں گے اس کے آنے تک واپس ہمیں لینے والا, تب تک ہر روز ہمیں جیتنا ہوگا, ہر روز ہم آنند منانا ہوگا, دشمن کو ہرانا ہوگا, ہر مشکل کو آسان کرتے جانا ہوگا آگے آگے. ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, کلیسیا والوں کے لیے, ہمارے بھائی بہنوں کے لیے, ہمارے نیپالی بھائیوں کے لیے, اور وہ ہمارے لیے,
हम सब मिलकर दुनिया वालों के लिए जो तकलीफ में है, बीमार में है, परेशानी में है, दबाव तले सताव में है, उन सब को ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे विजय को, सक्सेस को, छुटकारा को, उद्धार को। और ये हमारा हर रोज का संघर्ष है। आज हम विश्वास में उस बुनियाद पर खड़े हैं, लेकिन गिर सकते हैं, प्रलोभन आता है। प्रलोभन को हराना है, हमें प्रलोभन को हराना है। और अगर ये परमेश्वर की ओर से आए, परीक्षा सहना होगा हमें। सहने के लिए उपाय भी वही करता है, पास में ही होता है, हमारे पास में, हमसे दूर जाने वाला नहीं। जब परीक्षा आएगा तो हमें छोड़कर जाएगा वो। जब हमें परखने का समय आ गया है, परीक्षा का समय, यीशु मसीह छोड़कर चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं करेगा वो। ऐसे छोड़कर जाने वाला नहीं है वो, भरोसामंद है। जो हम बहुत हद तक उस पर भरोसा कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। कह के देखो, थैंक यू लॉर्ड बीइंग विथ मी। यीशु मसीह आज भी तू मेरे साथ है, धन्यवाद देता हूं, थैंक यू लॉर्ड। बोलो, कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है। यीशु इन वचनों से हमें आशीर्वाद दे, हमें ताकत दे। यीशु हमारे साथ ताकत बनकर, उपाय बनकर हमारे साथ चलता रहे आखिरी दिन तक। प्रार्थना में जाएंगे, आखिरी प्रार्थना होगी। सीताराम दास जी प्रार्थना करेंगे। सर, जय मसीह की सर। जय मसीह की। पास्टर जी आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, जीते महान और सामर्थी सर्वशक्तिमान, सारे सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। और सारे लुकिंग अप टू जीसस परिवार